पुरानी क्लास में से कोई डाउट है किसी का अभी? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है मसल्स के बारे में है। मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। एक जना कोई भी बता दो कि स्क्रीन प्रॉपरली आ रही है या नहीं। ओके राजिया, रिजा सॉरी। सो आवर टॉपिक इज मसल्स ऑफ अपर लिम्ब। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। So there are total 600 muscles in human body. Some muscles are recently discovered, like before researches, we always said there are four muscles in quadriceps group. Quadriceps is your front thigh muscles, but now we just said there are five muscles in your front thigh. So some muscles are recently discovered, some already had discovered. So there are almost 600 muscles in our human body. The three main type of muscles: skeletal, smooth, and cardiac muscles. पीयूष, आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके। So there are three types of muscles, that one is skeletal, another one is smooth, and cardiac muscles. Cardiac muscles and smooth muscles are those muscles which we can't able to control by ourselves. If I want to, for a while, I want to stop my heart. Is it possible? No. So these are the involuntary action muscles. But another one is skeletal muscle. Skeletal muscle is a kind of a voluntary muscle which we can control. If I want to pick a pen, then I can. If I don't want to pick a pen or something else, it's up to my wish. So this is the type of involuntary muscle. Skeletal muscle is involuntary, and smooth and cardiac muscles are voluntary involuntary muscles. Then the third point is the brain, nerves, and skeletal muscles work together to cause movements. Okay, neuromuscular system. Neuro stands for nerves. जितनी भी nerve groups है उनके लिए neuro. Then there is a term muscular. Muscular is for muscles. So neuromuscular system means system which is made up of muscles and nervous control for doing any kind of movement. Suppose we want to pick a pen. So for that, our brain is just the one thing which gives you the signals that yes, this is the time to pick up the pen. So the nerves or nerves endings give the signals to our muscles that we have to pick the particular pen or particular else things. So this system is known as a neuromuscular system, in which there is a control of nerves and muscular muscle system. Another point is the muscles of the human body that works the skeletal system that are under voluntary. Okay, as told you earlier, that the muscle group which we can able to control, that is the voluntary muscles. Another one group is involuntary muscles which we can't stop. We can't control our eye blinking. We can't control our heart muscles or heart pumping. So these are the involuntary movements, and our posture, balance, and another one is picking the objects, selecting the objects. All these are the skeletal muscle work. Then shape of the skeletal muscle fibers. There are five types of muscular fibers in the skeletal group. First is spindle, second is flat, third is triangular, and fourth and last one is circular. Sorry, there are four main types. Spindles, like in your upper arm, your bellies, like biceps belly. Flat muscles like diaphragm, triangle. All these muscular types are based on the shapes basically. Circular muscles or dome like shape or ring like shape, these are the muscular shapes. Triangular muscles, then like deltoid.
Deltoid start from hair, anterior deltoid, then it's a middle deltoid fiber, then the posterior deltoid fiber. So it's in the triangular shape. That's why we named it as a triangular skeletal muscles. Then there is a flat muscle, like we have a diaphragm. All of us are aware from the diaphragm. Beneath the lung, there is a structure known as a, there is a big muscle that is known as a diaphragm. Okay, that is a flat kind of muscle. Spindle muscles, like a biceps. Okay, हम लोग जितना भी रीड कर रहे हैं, जो भी एनाटमी हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर जितना भी हम लोग मस्कुलेचर पढ़ने वाले हैं, फॉर दैट देयर इज अ नेसेसिटी टू लर्न अबाउट द मूवमेंट्स, लर्न अबाउट द मसल्स, लर्न अबाउट द मूवमेंट्स. तो कौन सी मूवमेंट कहाँ हो रही है, किस एक्सेस पे हो रही है, जो हमने पढ़े थे. वी रेड द एक्सेस, प्लेन्स, सजाइटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स. तो वो यहाँ यूज होते हैं. हेयर वी कैन एबल टू अप्लाई और इम्प्लीमेंट दैट. फर्स्ट वन इज मूवमेंट इज फ्लेक्शन. फ्लेक्शन इज द मूवमेंट जो आपके बॉडी के क्लोज जा रही है. तो फर्स्ट मूवमेंट इन दिस डायग्राम, देयर इज अ फ्लेक्शन. Okay, flexion. Then another movement is extension. Extension matlab away from the body. Flexion means towards the body. Extension means away from the body. So if we want, आप लोग प्लीज अपने अपने कैमराज ओपन कर लीजिए. जो जो पॉसिबल है जिन लोगों का, वो कैमराज ओपन कर लो. ओके, फ्लेक्शन आप लोगों को जितना भी समझ आ पा रहा है, मेरे साथ साथ मूवमेंट करोगे तो क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा. फ्लेक्शन ऑफ आर्म. ठीक है, आर्म की मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग. फ्लेक्शन मींस टुवर्ड्स द बॉडी. सो फ्लेक्शन कहाँ होगी, ये मूवमेंट याद रहेगी. फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स द बॉडी. अंसाब, जो आप मूवमेंट करके दिखा रहे हो मुझे, दैट इज Raising forward. अबडक्शन. Yes, I know. Abduction is forward is flexion, is it? Raising forward is flexion, is it? सॉरी, Raising forward is flexion, is it? raising forward is flexion, exactly, and raising sideways is abduction, or you can pronounce it as a abduction. Okay. Abduction. Okay, got it. Okay, So okay. first movement is flexion. This one is flexion. Now if you just Guys, there is a network issue, so Dr. Flex is joining ASAP. So please wait.
आ रही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें फ्लेक्शन की, तो टूवर्ड्स द बॉडी या फिर अलोंग विद द प्लेन ऑफ द बॉडी जो जाएगा, दैट इज फ्लेक्शन। तो अगर आपका हाथ जो है वो फ्रंट रेज हो रहा है, आगे की तरफ से उठ रहा है, तो दैट इज फ्लेक्शन। अगर वो हाथ जो है नॉर्मल एक्सिस से, हम लोगों ने पिछला लेक्चर अगर याद करें तो हम लोगों ने एनाटॉमिकल पोजीशंस देखी थी, राइट? सो एनाटॉमिकल पोजीशंस जो थी हमारी, एनाटॉमिकल पोजीशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या थी कि हमारा जो हाथ है वो प्रॉपरली सुपिनेटेड, क्या कहते हैं, जो पाम्स जो है हमारे वो फ्रंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग उसी पोजीशन से बात करें तो उस पोजीशन से अगर अप जा रहा है दैट इज फ्लेक्शन, बैकवर्ड या बिहाइंड जा रहा है दैट इज एक्सटेंशन। सो अगर इफ आई वांट टू रेज माय हैंड लाइक दिस, तो दिस इज द फ्लेक्शन, और अगर ये पीछे जा रहा है तो इट इज द एक्सटेंशन मूवमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द abduction एंड adduction? अगर मेरा हाथ ये है क्लोज, यहां से ऊपर गया, दैट इज एबीडक्शन या अबडक्शन, ABDUCTION। एंड इफ इट इज कम बैक, वापस आ रहा है टूवर्ड्स द बॉडी या फिर टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, सो दैट इज द अडक्शन, ADDUCTION, अडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? यस क्लियर हो गया। ओके, देन आता है मीडियल रोटेशन और मैम, हाँ जी। फॉर एग्जांपल जब आप लैटरल रेज कर रहे हो वो एक हम्म, अबडक्शन है। जी, वो अबडक्शन है, एग्जैक्टली exactly. और जब आप लेटरल रेजेस से वापस आ रहे हो दैट इज अडक्शन, अडक्शन ADDUCTION। जब आप आर्म को फ्रंट रेज कर रहे हो तब फ्लेक्शन है। हाँ। और हम्म। बस उतना ही है ना? आप लोग ट्राइसेप्स करते हो जिम में, हाँ, अगर वो पीछे जा रहा है तो दिस वो इज द पार्ट फ्लेक्शन ऑफ है, योर एक्सटेंशन। पीछे एक्सटेंशन। जो जा रहा है, हाँ पीछे। हाँ मैम, अगर आप लोग उसी में ही बाइसेप्स करते हो तो दैट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। ठीक है, लेटरल रेजेस किया तो अबडक्शन, लेटरल रेजेस से वापस लाए तो अडक्शन, ADD, अडक्शन। और ओके एबीडक्शन बोलो या अबडक्शन। ओके, जी मैम। सो सेम सिमिलरली अब हम लोग बात करते हैं, ये चार मूवमेंट्स क्लियर हो गई। नाउ कम टू द अनदर टू मूवमेंट्स, मीडियल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। मीडियल रोटेशन इज टूवर्ड्स द बॉडी प्लेन। आपका ये हाथ था, ठीक है, और मेरा ये हाथ मैं इस तरफ ले आई, ये हाथ था मेरा, ये नॉर्मल था, अंदर आया तो मीडियल रोटेशन। इफ इट गोज आउटसाइड देन इट्स एक्सटर्नल रोटेशन, और वी कैन से, सॉरी, वी कैन से एक्सटर्नल रोटेशन। क्लियर हुआ यहां तक? वो मीडियल रोटेशन को इंटरनल रोटेशन भी बोल सकते हैं ना? एग्जैक्टली, इंटरनल भी, और एक्सटर्नल को हम लोग लेटरल रोटेशन भी बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, देन लास्ट इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन मतलब वो मूवमेंट जिसमें आपका हाथ 180 डिग्री घूम रहा है। अगर मेरा हाथ ये है और मैंने इसको पूरा पीछे से लाकर आगे तक किया तो दिस इज सर्कमडक्शन मूवमेंट। फ्लेक्शन फ्रंट रेजेस जिम में हम लोग करते हैं, एक्सटेंशन बैकवर्ड जो मूवमेंट जाएगी, देन अबडक्शन लेटरल, जो हमारा लेटरल रेजेस होते हैं, लेटरल रेजेस से वापस लाना इज adduction, then come to the another one is medial rotation, then external rotation या फिर lateral rotation। ओके, circumduction 180 डिग्री आपका मूवमेंट हो गया। देन आते हैं कुछ मूवमेंट्स जो हमारे और बच गए। आप लोगों के ना इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर दिया मैंने, तो आप लोग उससे क्लियर कर सकते हो।
डॉर्सीफ्लेक्शन जो आपका फुट है, फुट नॉर्मल पोजिशन में, डॉर्सीफ्लेक्शन जब हम पंजा खींच रहे हैं, आपका फीट टूवर्ड्स योर फेस जा रहा है, दिस इज डॉर्सीफ्लेक्शन। आपका फीट अवे जा रहा है, ठीक है, नीचे टूवर्ड्स ग्राउंड जा रहा है, ये था डॉर्सीफ्लेक्शन, ये था प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? सिद्धार्थ क्या हुआ, ब्लैंक हो गए, क्लियर नहीं हुआ? हो गया मैम। देन आता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। अगर सुपिनेशन मतलब रेडियस एंड अल्ला जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, सुपिनेशन। देन प्रोनेशन। क्लियर हुआ? इसकी यस मैं मैम। एक इमेज और दिखा देती हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ अभी तो। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सुपरनेशन का परफेक्ट एग्जांपल तो बारबल कर्ल्स है, और वही बाइसेप कर्ल्स, और प्रोनेशन का तो ट्राइसेप पुश डाउन। हाँ, उसमें आपका दोनों आ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार, अगर उससे क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक दो इमेजेस और दिखा देती हूँ। ये आपका सुपिनेशन, जिसमें आपके हाथ की ये लाइंस दिखेंगी ना, सुपिनेशन सॉरी, सुपिनेशन स से हो गया और स से ही सीधा हो गया, तो सीधा हाथ इज योर सुपिनेशन, उल्टा हाथ, ठीक है, इस प्रोनेशन। क्लियर हो गया? देन कम ये टू द अनदर। आप अभी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही हैं? कौन पूछ रहा है मेरे से? हाय मैम, आई एम कैफ दिस साइड, हाँ मोहम्मद कैफ जी, खान। कैफ। हाँ जी, कैफ हम लोग पहले पढ़, तो हम लोग बेसिकली मसल्स ही रहे हैं, बट मसल्स आपको, मसल्स का एक्शन तब तक समझ नहीं आएगा कौन सी मसल क्या कर रही है, अनटिल अनलेस हम लोग हाँ ये टर्म्स क्लियर नहीं करेंगे कि रोटेशंस हैं या क्या है। तो ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में नहीं है, ये प्रॉपरली हमारी जो मूवमेंट्स है ना, सिर्फ मूवमेंट्स को थोड़ा सा एक बार देख रहे हैं हम लोग। ओके, लाइक प्लेन्स ऑफ मोशंस। प्लेन्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या? जो पिछला फर्स्ट अच्छा। लेक्चर हमारा जो था, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर जो था इनिशियल वन, उसमें हम लोग ऑल ये सब पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हम लोगों की उसमें मूवमेंट्स क्लियर नहीं थी, हम लोगों ने सिर्फ प्लेन्स और एक्सेस ओके। पढ़े थे कि क्या है क्या नहीं है। बट उसको हम्म। क्लियर करने के लिए एक बार हम लोगों को ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ लेट्स से बाइसेप्स जो है आपका वो फ्लेक्शन करा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट बोल रही हूँ तो आपको फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं पता, तो उसका कोई सेंस नहीं है मूवमेंट पढ़ने का ना। हाँ बिल्कुल। बस वही क्लियर कर रहे हैं हम लोग, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे अभी। ओके ओके, थैंक यू। ओके, रोटेशंस तो नॉर्मली हम लोगों का इधर रोटेट किया, हम लोगों ने नेक को रोटेशन किया, ठीक है, ये वो चीज हो गई रोटेशंस के लिए। देन एलिवेशन, एलिवेशन हम लोग शोल्डर श्रगिंग्स करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द एलिवेशन। देन डिप्रेशन, हम लोग बोलते हैं शोल्डर डिप्रेस करना है, ये करा तो डिप्रेशन, ये करा तो एलिवेशन। ओके, देन रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, अगर मेरा जॉ हो गया या फिर मेरा शोल्डर जो है, दिस इज रिट्रैक्शन, आगे आना इज रिट्रैक्शन, फॉरवर्ड जो है पीछे जा रहा है, दैट इज सॉरी, पीछे जा रहा है तो रिट्रैक्शन, फ्रंट आ रहा है तो प्रोट्रैक्शन। Then there is last three terms, inversion, eversion and apposition. Apposition सिर्फ आपके थंब में होती है, जो ये फिंगर्स के साथ मूवमेंट हो रही है, दिस इज apposition. Another one is inversion and eversion. Inversion और in, exit and eversion, ये मेरा नॉर्मल फुट का पोजिशन था। eversion मतलब आपका फुट बाहर जा रहा है, exit, ई से याद रख लो, exit। और इनवर्जन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, इनवर्जन मतलब फुट अंदर जा रहा है। आपने बहुत लोगों का फुट देखा होगा ना, किसी का वॉकिंग करते हुए कोई कहता होगा कि एक पैर तो सीधा आता है, एक टेढ़ा जाता है, तो जो टेढ़ा जाता है दैट इज इवर्जन। क्लियर हो गई ये मूवमेंट्स? आगे बढ़ सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? ओके, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज द शोल्डर, जो मसल्स है हमारी अपर लिम्ब की। तो अपर लिम्ब को हम लोग आज जो पढ़ेंगे, शोल्डर मसल्स, फोर आर्म और पेक्टोरल रीजन की मसल्स। एल्स जो हमारी बच जाएंगी मसल्स, वो हम लोग कल कवर करेंगे ऑन द, कल संडे क्लास में, हाँ कल संडे वाली क्लास में हम कवर कर लेंगे। सो शोल्डर रीजन की मसल्स को हम लोगों ने
दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो जो मसल्स इंट्रिंसिक हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब वो मसल्स जो आपके स्कैपुला या क्लेविकल जो है, ओरिजिनेट क्लेविकल और स्कैपुला से हो रही है और इंसर्ट आपके ह्यूमरस पे जाके हो रही है। क्लेविकल कौन सी बोन थी, कौन बताएगा? कॉलर बोन। कॉलर बोन, कॉलर, एग्जैक्टली। और स्कैपुला? बैक के पास। हाँ, यस। बैक के पास? बैक के पास कौन सी मसल, कौन सी बोन? शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ओरिजिनेट जो मसल्स स्कैपुला और क्लेविकल से निकल रही हैं, और ह्यूमरस कहाँ पे थी? आर्म। आर्म में। तो जो ये हमारी एक सिंगल ये जो बोन है दैट इज ह्यूमरस, और ह्यूमरस पे अटैच हो रही है। यहाँ पे आप लोग दो टर्म्स पढ़ोगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मसल स्टार्ट करने से। ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब उगना, जहां से वो मसल शुरू हो रही है। इंसर्शन इज जहां पे वो मसल जाके एंड हो रही है। देन आपको इसमें सुनने में आएगा ब्लड सप्लाई में, या फिर इनर्वेशन लिखा होगा। इनर्वेशन मतलब कहाँ कहाँ से, इनर्वेशन मतलब पर्टिकुलरली आपकी वो कौन सी नर्व्स हैं जो उसको सप्लाई कर रही हैं। और ब्लड सप्लाईज में आपका आर्टरीज और वेन्स के बारे में होगा कि कौन सी पर्टिकुलर आर्टरी जो है वो उस पर्टिकुलर मसल को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो आपके क्या कहते हैं, टॉर्सो से निकलेंगी और आपके क्लेविकल और ह्यूमरस और स्कैपुला पे जाके अटैच होंगी, इंसर्ट इन पे होंगी। ठीक है, तो हमारी पहली मसल एक्सट्रिंसिक कौन सी है? ट्रेपेजियस, जिसको हम लोग ट्रैप बोल देते हैं। मैं तो ट्रैप ट्रेन कर रहा हूँ, या फिर शोल्डर श्रगिंग्स करते हैं हम लोग ट्रैप्स मसल के लिए। तो ट्रैप मसल क्या है? अभी हम लोगों ने स्केलेटल का पार्ट पढ़ा था, फ्लैट मसल है ये, ब्रॉड फ्लैट मसल है, ट्राइंगुलर शेप में है। ठीक है, और अगर हम लोग अटैचमेंट्स की बात करें इसकी, तो अटैचमेंट इसकी कहाँ से है? अगर आप लोग ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ऊपर यहाँ पे जो रेड रेड वाला पोर्शन है दैट इज योर ऑल ट्रेपेजियस मसल। ये पूरा एक ऐसे करके एक छोटा सा ट्रेपेजॉइड सा बनाती है। ठीक है, ट्राइंगुलर मसल है, ऊपर ट्राइंगल सा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइड बनाती है। तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द लिगामेंटम नके। लिगामेंटम नके से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, देन उसके बाद पूरा नीचे तक जाती है, और कहाँ तक कहाँ जाके एंड हो रही है? हम लोगों ने एक बॉडी पार्ट पढ़ा था स्कैपुला का, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, याद है? बिल्कुल याद नहीं है मैं। याद नहीं है? क्यों नहीं है सिद्धार्थ आपको याद? बोन्स नहीं पढ़ी हमने, स्कैपुला बोन नहीं पढ़ी हमने? सिद्धार्थ, आपने वो जी लेक्चर मैम, रिवाइज नहीं किया? नहीं किया मैम। क्यों नहीं किया? अगर बोन्स याद नहीं है तो मसल्स कैसे याद करोगे? याद है लेकिन याद नहीं है मैम, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। ओके फाइन। हम लोगों ने स्कैपुला पढ़ा था। ये स्कैपुला का अंदर वाला पार्ट है, ये स्कैपुला का बाहर वाला पार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं बाहर से। ठीक है, ये बाहर वाला पार्ट है। नीचे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा था, ऊपर सुप्रास्पाइनेटस फोसा था। इन दोनों के बीच में एक ये जो लाइन जाती है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इसको हम लोग स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला, अब इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लेविकल पे आके लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, मतलब कुछ पार्ट इसका यहाँ पे आता है। ठीक है, देन उसके बाद मीडियल एक्रोमिनल मार्जिन, मतलब स्पाइन ऑफ स्कैपुला जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। देन उसके बाद नीचे आएगी, ये पूरा ट्रेपेजॉइड बनाते हैं। लास्ट जो आपका T12 है ना, वहां तक जाएगा ये। ठीक है, और वहां पे जाके ये एंड हो जाती है ट्रैप हमारी। ऊपर से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग पोनी टेल्स बांधते हैं जो लड़कियां, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, और आपका T12 वर्टेब्रा पे जाके एंड हो रही है मसल। देन आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी ऑसिपिटल आर्टरी से होती है। ये चीजें आपको मगअप करनी पड़ेंगी, इसमें आपको पर्टिकुलरली कोई भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको याद करनी ही पड़ती हैं चीजें। ठीक है, ये आपकी ट्रैप मसल थी। देन हम लोग बात करते हैं लैटिस्मस डॉर्साई, जो हम लोग जिम में हम लोग क्या करते हैं, पुश और पुल वाली मूवमेंट्स, दो मूवमेंट्स होती हैं जिम में बेसिकली।
जो हमारी पुलअप्स होते हैं, ठीक है, वो आपका ट्रैप मसल कराता है। देयर इज अ बार, आप समझो ये बार है, हम लोग ये मूवमेंट जो कर रहे हैं, ये आपका लेटिसमस डॉर्साई ट्रेन हो रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैट्स मसल बोल देते हैं। ठीक है, तो लैट्स मसल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपका T7 और T12 से स्टार्ट हुआ और नीचे कहाँ तक जा रहा है? इलियक क्रस्ट तक। मतलब एक बहुत ह्यूज पार्ट है इसका, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये ऊपर वाला ट्रैप मसल है, इसके नीचे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ कहीं से और ये पूरा नीचे तक जा रहा है। एक ओरिजिन इसका यहाँ से है, दूसरा इसका जो फाइबर्स है वो थोड़े से टेढ़े आते हैं, वो कहाँ से है? आपके यहाँ से, आपके ह्यूमरस से। ठीक है, ह्यूमरस से नीचे इलियक क्रस्ट तक, और दूसरे फाइबर से आपके T7 T12 से लेकर नीचे इलियक क्रस्ट तक। ये आपका लेटिसमस डॉर्साई का पार्ट था। अच्छा, मूवमेंट्स की बात करें तो हमारा मैम एक बार ट्रैप वो मसल जो पिक्चर है, फिर से एक बार बताइए ना। ये वाली पिक्चर हाँ। देखो। अभी तक हमने दो मसल्स पढ़ी, ट्रैप और लैट्स। ऊपर ट्रेपेजियस मसल है, जो आपका, आपको सबसे पहला बोनी पार्ट फील होता है सर का, वहां से शुरू होती है, नीचे आपके T12 तक आती है, ये लगा लो। ठीक है, इजी करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। लैट्स मसल जो है उसी के जस्ट थोड़ा सा ये मेरे लैट्स थी, इससे थोड़ा सा नीचे से लैट्स शुरू हो रहा है, ठीक है, और वो पूरा नीचे तक जा रहा है। जो आपका हिप बोन आता है, ये वाली जो आपका हिप बोन का पार्ट है, ठीक है, इससे ऊपर जितना भी ये फाइबर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके लेटिसमस डॉर्सा है, लैट्स मसल के पार्ट है, जो आपके पुलअप्स में यूज होती है। क्लियर हुआ यहां तक? जी मैम। ठीक है, अब हम लोग एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा ये है ट्रैप मसल है, इसके तीन फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। अपर फाइबर आपका श्रगिंग कराता है, मिडल फाइबर आपके स्कैपुला को, ब्लेड को, शोल्डर ब्लेड को अंदर खींच के रखता है। अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे जो आपके क्लाइंट्स होंगे ना, उनका स्कैपुला ऐसे ना होके बाहर होता है बिल्कुल, आपको लगता है कि दोनों स्कैपुला बाहर गिर रखे हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि या तो आपके रोबॉइड्स वीक होती है या फिर ट्रैप मसल वीक होती है। तो मिडल फाइबर ट्रैप के लिए जो हम लोग जिम में या नॉर्मली भी रूटीन में पोस्चरल करेक्शन के लिए IYT पेशेंट्स को रेफर करते हैं एक्सरसाइज, जो हम लोग ये वाले कराती है मूवमेंट्स। ठीक है, ये आपके मिडल ट्रैप के लिए। देन आता है लोअर ट्रैप, जो आपका ये वाला पोर्शन है। लोअर ट्रैप आपके स्कैपुला को नीचे खींचता है, अपर ट्रैप ऊपर खींचता है, लोअर ट्रैप नीचे खींचता है, मिडल ट्रैप मिडल साइड पे, मीडियल साइड पे खींचता है। ठीक है, लैट्स मसल का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो इसका एक्शन या फंक्शन क्या है? एक तो ये आपके आर्म को एक्सटेंड कराता है, जो हम लोग एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। दूसरा अडक्ट कराता है, आपके बॉडी के पास रखता है। और मीडियल रोटेट द अपर लिम, अपर लिम को मीडियली रोटेट करता है अंदर की तरफ। ठीक है, देन आता है डीप मसल्स की बात करते हैं हम लोग। ये भी हम लोग एक्सट्रिंसिक मसल्स ही पढ़ रहे थे। ठीक है, डीप मसल्स में हमारे तीन मसल, ये दो तो सुपरफिशियल मसल है, जो यू कैन एबल टू जस्ट पेल्पेट इट। आप लोग अगर बॉडी पे, हम ह्यूमन बॉडी पे देखना चाहें तो ये मसल हम लोग फील कर सकते हैं। जो हमारे पावर लिफ्टर्स वगैरह होते हैं, जिनकी मसल्स थोड़ी सी ग्रो होती है, उसमें ये मूवमेंट्स हम लोगों को क्लियर, उसमें ये मसल्स हम लोगों को क्लियरली दिख जाती हैं। आपको ऐसे करके ट्रेपेजॉइड बना हुआ दिख जाएगा प्रॉपरली। देन आता है लिवेटस स्कैपुला और दो रम्बॉइड्स मसल हमारे। ठीक है, ये दोनों डीप मसल्स हैं विच वी कांट एबल टू सी। ओके, हम लोग पेल्पेट कर सकते हैं, उसकी अलग टेक्निक्स हैं, बट वी कांट एबल टू सी। फर्स्ट वन इज लिवेटस स्कैपुला एंड अनदर वन इज rhomboids मसल। लिवेटस स्कैपुला कौन सी मसल है? लिवेटस स्कैपुला हमारे यहाँ होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि रात को तो मैं सोया था, बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह उठा तो मेरी नेक जो है ना वो इधर बेंड ही नहीं हो रही, ना मैं देख पा रहा हूँ ना कुछ। तो वहां पे से दो ही मसल्स होती है, उनमें से एक मसल मैम एक बार पिक्चर बताइए ना, उसको फोटो। लिवेटस स्कैपुला की। हाँ, हाँ। जो ये ग्रीन वाला है, ये लिवेटस स्कैपुला है आपका। ग्रीन वाला। हाँ, जो ये ग्रीन पार्ट है, लिवेटस स्कैपुला। दो मसल ओके। हमने पढ़ी, ट्रेपेजियस और लेटिसमस डॉर्साई। ऊपर जो ये यस। ग्रीन वाला पार्ट है इज योर लिवेटस स्कैपुला। क्लियर हुआ? ठीक है, देन उसके बाद हम लोग जो रोम्बॉइड्स मसल की बात कर रहे थे, रोम्बॉइड्स के दो मसल फाइबर्स है, मेजर एंड माइनर। जो ये ऊपर वाला है ब्लू में, ठीक है, एक ये है, और एक आपका जो ये नीचे वाला है।
एनाटमी में जो भी चीज मेजर रहेगी ना वो नीचे होगी, और जो माइनर है, ठीक है, वो चीज ऊपर है। थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक है। तो माइनर हमारा जो है रोम्बॉइड्स के फाइबर वो ऊपर है, मेजर नीचे है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्कैपुला को हमारी स्पाइन से कनेक्ट करा रहे हैं। एनाटमी तो में मेजर नीचे रहेंगे, माइनर ऊपर रहेंगे। माइनर फाइबर्स ऊपर। जैसे अगर हम लोग मतलब पेट की हर भी एक बात मसल करें, में। हाँ, हर मसल में यही पर्टिकुलर है। अगर एक्सेप्शनल कुछ हुआ तो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी, अदरवाइज यही जैसा प्रिंसिपल है जैसे मेजर। कि चेस्ट में क्लैविकल पोर्शन माइनर मसल है। क्लेविकल पोर्शन माइनर मसल है, मतलब नहीं समझी मैं। मतलब अगर चेस्ट मसल देखा जाए तो चेस्ट मसल में क्लैविकल पोर्शन जो है वो माइनर मसल है। क्लेविकल आपकी बोन है, मसल नहीं है। वही क्लैविकल पोर्शन में जो मसल्स इंक्लाइन चेस्ट बोलते हैं ना। नहीं नहीं, आप बट ये दोनों चीज तो अलग है ना मैम। बहुत अलग हो हाँ गई, हाँ। दोनों चीजें बहुत अलग हो गई। हाँ, हम लोग ये डिस्कस चेस्ट कर, और देखो, एक ये है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस। मैंने जो बोला कि मेजर मसल्स नीचे, माइनर ऊपर, अगर अब ये शोल्डर के लिए हो गया, ठीक है। बहुत सारी जगह पे, जैसे अब आपका, हम लोग फ्रंट चेस्ट की, जैसे आप मेरे से इंक्लाइन बेंच प्रेस का पूछ रहे हो या कुछ, तो उसमें क्या है, आपका माइनर और मेजर दोनों फाइबर्स हैं, ठीक है। उसमें पेक्टोरल मेजर और माइनर है, उसमें ये चीज उल्टी है। 90% में यही है, बट एक्सेप्शनल्स आर, जैसे टेरेस मेजर माइनर है, ठीक है। इसमें क्या है, जो आपका फ्रंट मसल्स हैं, ये प्लीज माइक अनम्यूट म्यूट कर लो, सॉरी। ओके। फ्रंट, अगर हम लोग चेस्ट मसल की बात करते हैं तो जो मेजर मसल है वो ऊपर है, माइनर मसल नीचे है इसमें। सिद्धार्थ, मैम आपको चेस्ट में क्लियर? माइनर नीचे है जी, चेस्ट में माइनर जी मसल मैम। नीचे है। और उसमें बैक साइड में माइनर ऊपर है, तो उस पे हाँ, शोल्डर पे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसका भी डायग्राम दिखा देती हूँ, मैंने इसमें ऐड किया है। हाँ, दिखा दो। ओके। जो पेक्टोरलिस मेजर है, ये मसल ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर दूं तो इसके नीचे जो दूसरी मसल है, ये वाली ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर जो है, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, ये माइनर है। इसमें उल्टा है, माइनर नीचे है, मेजर ऊपर है। और चेस्ट, बैक साइड की जो मसल थी, रोम्बॉइड्स वाली, इसमें हमारा माइनर ऊपर है, मेजर नीचे है। क्लियर हो गया ये? हाँ जी मैम, क्लियर हो गया, दोनों ओके अपोजिट मैम। है ना। हाँ, ये अपोजिट है। और टेरेस की जो बात है वो हम लोग जब आर्म के बारे में पढ़ेंगे मैं बता दूंगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, जो मेजर और माइनर मसल है, ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा शोल्डर ब्लेड जो है उसको रिट्रैक्ट करता है। अगर मेरा पोस्चर ऐसे है, ठीक है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरा रोम्बॉइड मेजर माइनर वीक है। अगर मेरा शोल्डर ऐसे है, पीछे है, तो इट मीन्स मेरा मेजर और माइनर मसल जो दोनों है, ये बहुत बेटर वर्क कर रहे हैं, स्ट्रांग है ये मसल्स, स्ट्रेंथनिंग अच्छी है इनकी। जो इसमें फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, एग्जैक्टली हमारी मसल्स कुछ ऐसे दिखती हैं। ये डायग्राम, ये तो कलरफुल सा जो बना दिया अलग है। जब अगर हम लोग डायसेक्शन कर दें तो ये ऐसी दिखती हैं। जो ये वाला फाइबर आ रहा है, जो टेढ़ा फाइबर है, दैट इज योर ट्रेपेजियस मसल। जो नीचे आपको दिख रहा है, ऐसे फाइबर्स का जो डायरेक्शन जा रहा है, दैट इज योर लैटस डोर्साई, लैट्स मसल, ठीक है। लिवेटर स्कैपुला की जिसकी हमने बात करी थी, कि यहाँ से शुरू हो रहा है कहीं से और नीचे तक जा रहा है आपका स्कैपुला तक, रोम्बॉइड्स ये रहे, ये हमारा तो मैम प्रॉपर ये मसल्स है। एक्चुअल में ऐसे दिखता है। हाँ, एक्चुअल में ये मसल्स ऐसे दिखते हैं। ये वाला जो मसल बाहर निकाला हुआ है, ये आपका ट्रैप मसल है, जो साइड निकाल के और नीचे की मसल्स दिखा रखी है, ठीक है। अब हमने अभी तक एक्सट्रेंसिक मसल्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने ट्रैप देख लिया, लैट्स देख लिया, रोम्बॉइड्स, लिवेटर, ठीक, लिवेटर स्कैपुला देख लिया। यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नो मैम। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रेंसिक मसल्स की। एक टर्म यहाँ पे दिख रही होगी आप लोगों को, स्कैपुलो ह्यूमरल ग्रुप। स्कैपुलो ह्यूमरल मतलब स्कैपुला, अभी तक जो देखे थे वो सुपरफिशियल मसल्स है। हाँ, मतलब नहीं,
सुपरफिशियल नहीं, ये एक्सट्रेंसिक मसल्स है। एक्सट्रेंसिक में भी दो थी, डीप और सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में आपकी लेटिसमस डॉर्साई और ट्रेपेजियस मसल थी। डीप में आपकी लिवेटस स्कैपुले और रोम्बॉइड्स मेजर माइनर आ गई। ओके, ठीक है। मतलब उनके वो और अंदर है। हाँ, अगर हम लोग लैट्स को और आपका ट्रैप मसल को हटा देते हैं, डाइसेक्शन कर देते हैं वो मसल, तब हमें काट देते हैं। दिखेगी ये वाली। हाँ, काट देंगे, कट करके स्लाइड निकाल देंगे, तो नीचे रोम्बॉइड्स और लिवेटस नजर आएगी। मैम इसे पालपेट तो कर नहीं सकते ना? पैल्पेशन के ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। पैल्पेशन तो जो आपकी क्या कहते हैं, ये मसल है हमारी पेक्टोरल मेजर और माइनर, इसको भी पेल्पेट करना इज वेरी। पेक्टोरल मेजर जो है वो तो बड़ा ग्रुप है, आप आराम से मेजर कर पेल्पेट कर सकते हो। बट माइनर बहुत बड़ा ग्रुप है, तो माइनर को पेल्पेट आप लोग इतना इजीली नहीं कर सकते, तो उसका भी तरीका है। माइनर मसल को पेल्पेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाथ ये पीछे रखवाते हैं, ठीक है, और चेस्ट को साइड से एंटर करते हैं, तो हम लोगों को माइनर मसल मिल जाती है। ऑलमोस्ट अगर 600 मसल्स है ना, तो उसमें से आप 90% मसल्स को पेल्पेट कर सकते हो। तरीके अलग अलग हैं, अप्रोचेस अलग अलग हैं। ओके, अब ओके। हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक मसल्स की। इंट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो क्लेविकल या स्कैपुला से ओरिजिनेट होती हैं और ह्यूमरस पे जाके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी 6 मसल्स हैं इस ग्रुप में। डेल्टॉइड, टेरेस मेजर, ठीक है, और आपकी 4 रोटेटर कफ की मसल्स, जो हम लोग जनरली सुनते हैं ना, रोटेटर कफ इंजर्ड हो गया, रोटेटर कफ टीयर हो गया। ठीक है, वो हम लोग आज देखते हैं क्या टीयर होता है, कौन सी मसल है। सबसे पहले डेल्टॉइड की बात करते हैं। डेल्टॉइड के 3 फाइबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसमें 90% जो जिम वाला क्राउड है ना, वो गलती करता है। आप लोग जब भी देखोगे ना, जिम के जितने भी पर्सन आएंगे, वो सबसे ज्यादा लेटरल रेजेस करते हैं जब भी हम लोग बात मैम करते हैं लेटरल। मैम पैल्पेट मतलब मसल को फील करना है क्या? पैल्पेशन मतलब आप मसल बेली को, मसल को पकड़ सकते हो। लाइक अगर मैं ये हाथ है मेरा, या ये मेरे बाइसेप्स है, ठीक है, आपको पता है, अब आपने ये टच किया, आपको पता है ये बाइसेप्स है, ठीक है, तो आप क्योंकि फील कर पा रहे हैं, आपको इसकी बेली पता चल रही है, अगर मैं इसको ग्रास्प कर रही हूँ तो। लाइक ट्रैप मसल है, ट्रेपेजियस जो हमने पढ़ी, अब अगर मैं इसको करती हूँ तो मैं इसकी बेली इजीली पकड़ सकती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे है। बट व्हाट इफ अगर मुझे लिवेटस स्कैपुले पकड़नी है, तो पेल्पेशन मतलब पकड़ना उस मसल को, आप फील कर सकते हो उसको या नहीं। ठीक है, देन आता है डेल्टॉइड मसल। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी, जो हमारा जर्नली जिम का क्राउड होता है, पावर लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, या जर्नली बॉडी बिल्डर्स हैं, नॉर्मली भी जो यंग जनरेशन है, जो नया नया जिम जाना शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा लेटरल रेजेस करते हैं, और अच्छे खासे वेट के साथ करते हैं, हेवी वेट से। बट जब बात आती है कि शोल्डर में कोई इंजरी हो गई, तो फिजियो ना सबसे पहले असेस करके, लाइक आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मैं सबसे पहले असेस करके बोलती हूँ कि आपका मिडिल डेल्टॉइड बहुत वीक है। मिडिल डेल्टॉइड मतलब मिडिल डेल्टॉइड आपका लेटरल रेजेस कराता है। ठीक है, आप सबसे ज्यादा कर रहे थे फिर भी वीक है, क्यों? उसका रीजन होता है, वो रीजन आपको यहाँ मिल जाएगा क्यों। जो हमारी डेल्टॉइड मसल, हमने अभी पहले सबसे पहले यही पढ़ा था कि वो ट्राइंगुलर शेप की है। एंटीरियर फाइबर्स, मिडल फाइबर, और पीछे जाके यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर फाइबर्स, या फिर रेयर डेल्ट जिसको कह देते हो। आप लोग जिम जाते हो तो मशीन्स के ऊपर भी लिखा होता है कि ये वाली मशीन जो है, जैसे रिवर्स बटरफ्लाई जो है आपकी, दैट इज फॉर रेयर डेल्टॉइड मसल। ठीक है, तो हम लोग उसकी अटैचमेंट क्या है, लेटरल क्लेविकल, मतलब यहां से शुरू हुई, जो आपकी कॉलर बोन है वहां से शुरू हो रही है मसल। ठीक है, देन एक्रोमियन और स्पाइन, आपका जो ये स्पाइन है वहां तक गई। ठीक है, और कहां पर लाके एंड हो रही है, यहाँ पे डेल्टॉइड टिब्रोसिटी पे। ठीक है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी मतलब वो स्पेस जहां पे डेल्टॉइड मसल आके एंड हो रही है। ठीक है, तो 3 एक्शंस हैं इसके। इंटीरियर फाइबर्स इसका फ्लेक्शन कराता है और मीडियल रोटेशन कराता है। हमारा हाथ ये जो रोटेट हो रहा है अंदर की तरफ, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, लाइक मेरा हाथ ये था, मुझे खाना खाना है, इंटरनल रोटेशन जो हो रही है, मीडियल रोटेशन जो हो रही है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, जो आपका रिस्पॉन्सिबल फाइबर है इंटीरियर डेल्टॉइड। पोस्टीरियर फाइबर, पीछे का जो फाइबर है, एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन। ठीक है, देन आता है लास्ट मिडल फाइबर, क्या करता है, मेजरली अबडक्ट द आर्म
अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाला है, टेक्स ओवर फ्रॉम द सुप्रास्पाइनेटस विच अबडक्ट्स द फर्स्ट 15 डिग्रीज। हम लोग क्या करते हैं, लेटरल रेजेस कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं, ठीक है। अब लेटरल रेजेस हो रहे हैं तो आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके साथ इसका रिलेशन होता है। हमारा 90% जो मसल है ना, डेल्टॉइड ट्रेन ही नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, वो इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो कहाँ पे क्या ट्रेन हो रहा होता है, सुप्रास्पाइनेटस, और हम लोग बोलते हैं मैं तो लेटरल रेजेस कर रहा हूँ, हमें एंगल ही नहीं पता कितना डिग्री तक जाना चाहिए। ये मेजर मिस्टेक होती है। मैम हल्का हैंड अगर बैंड कर देते हैं मगर मैं हाथ को तो प्रेशर आता ही है नेक की तरफ पीछे। आइडली आपके नेक पे अगर प्रेशर आ रहा है तो वो नेक मसल ट्रेन हो रही है प्रमोद, डेल्टॉइड ट्रेन नहीं हो रही। 90% जिम में अगर आप चेक करोगे तो 90% ट्रेनर्स वेट, ट्रेनर्स के लिए सॉरी, 90% जितना भी क्राउड है वो टीथ क्लंच करके हाँ उठाता है, की किया और उठाया हाँ, तो ताकि मैं वही तो कह वेट रहा हूँ, हेवी ये जा जो सके। ये वाली मसल्स होती है, जो हाँ ये वाली मसल्स होती है ना नेक इधर साइड से जाती है, ये वाली मसल्स पे तो आता है सारा। हाँ, तो वहां नहीं अगर आना मैं चाहिए ऐसे ना, का लेटरल डेल्टॉइड मतलब आपका सोरनेस यहाँ आनी चाहिए, मिडल फाइबर पे आनी चाहिए सोरनेस। आपके यहाँ सोरनेस आने का तो मतलब ही नहीं बनता डेल्टॉइड ट्रेन होने में, तो इट मींस हम लोग एंगल हाँ गलत लेते हैं, ओके ठीक है। आप लोग ठीक है। लैट्स ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, बट आपका अब जिम में आपको कॉमन मिस्टेक बताती हूँ, लैट्स जब हम लोग ट्रेन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री से ऊपर ले जाते हैं। हाँ जी। जब आप लोग ऊपर ले गए तो वो आपका ट्रैप मसल ट्रेन हुआ, लैट्स तो हुआ ही नहीं, और लैट्स ट्रेन हुआ नहीं तो आपकी बॉडी बनी नहीं। फिर हम लोग क्या कहते हैं, मैं 4 साल से जिम जा रहा हूँ बट मेरी बॉडी डेवलप नहीं हो रही है, मसल नहीं बन रही है। मसल इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपका एंगल ही गलत है। नहीं मेरी बॉडी अच्छी है मैडम। ओके फाइन, होगी, मैं मना नहीं करती। देन डेल्टॉइड के बाद आता है टेरेस मेजर, ठीक है। टेरेस मसल हमारी जो है, ठीक है, अब इसको मैं एक डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। यहां से जो हमारा ये टेरेस का पार्ट है, टेरेस मेजर तक हमारा कोई भी रोटेटर कफ का मसल नहीं है, बट टेरेस माइनर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और आपका सबस्कैपुलरीज, ये चारों मसल्स जो है ये रोटेटर कफ का पार्ट है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, बट है ये भी इंट्रिंसिक मसल्स ही। ओके, टेरेस मेजर मसल जो है क्या कराती है, आपका अडक्शन कराती है, बॉडी के पास ला रही है और एक्सटेंशन कराती है शोल्डर की, ठीक है, और मीडियल रोटेट्स द आर्म। ये फंक्शंस आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, कौन सी मसल क्या काम कर रही है, सो दैट एक अगर बार उसका फोटो बताइए मैम, क्या चीज कह रहे हैं आप, पिक्चर। पिक्चर बता दो मैम इसकी। टेरेस मसल की। हाँ हाँ ओके वेट, मैं एक सेकेंड दिखा रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी मैम। स्क्रीन पे अभी जो इमेज आ रही है टेरेस मेजर माइनर की, दिख रही है क्लियर? जी मैम। ओके, टेरेस मेजर माइनर, वो तो पेक्स दिख रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी मैं दोबारा शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? नो मैम। अभी टेरेस हाँ मैम। मेजर माइनर, हाँ। तो देखो जो हम लोगों ने अगेन जो डिस्कस किया था, माइनर इज अबव, मेजर नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो ये मसल जा रही है ऊपर, जो मसल है, लाइक ये कहाँ से जा रही है, ये आपका स्कैपुला है और ये आपका ह्यूमरस बोन है, ऐसे कनेक्शन होता है इनका। जी मैम। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहां से ये मसल निकल रही है और ये आपके इस पार्ट पे आके कनेक्ट हो रही है, समझ आया या नहीं? ये बैक साइड है ना मैम, ये बैक साइड है ना? हाँ, बैक साइड पे है, फ्रंट पे आपकी सिर्फ एक दो मसल्स हैं, वो अलग बता दूंगी मैं, इसके बाद करेंगे वो डिस्कस, वो रोटेटर कफ में आएगी, इनफैक्ट सिंगल मसल है, वो रोटेटर कफ में आएगी। बट जो इसमें है ये बैक की मसल्स हैं, अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी है ये ऑलमोस्ट बैक की मसल्स हैं, फ्रंट की जी कोई मैम। नहीं है, ठीक है। ये टेरेस मेजर माइनर है।
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी जो हमारी मसल थी यहाँ पे टेरेस की। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, टेरेस माइनर मसल की बात कर रहे थे, टेरेस मेजर की, सॉरी। टेरेस मेजर मसल जो थी, ठीक है, ये आपको अडक्शन करा रही है, एक्सटेंशन करा रही है और मीडियल रोटेशन। अब आता है हमारा रोटेटर कफ मसल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरीज एंड लास्ट वन इज आपका टेरेस माइनर। ठीक है, जर्नली हम लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए हम लोग निमोनिक्स बना लेते, जैसे हमने कार्पल बोन्स का बना रखा था, शी लुक्स वेरी प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। सेम वैसा यहाँ पे है हमारे पास निमोनिक, दैट इज सिट्स, SITS, S supraspinatus, I infraspinatus, T teres minor, S subscapularis। ठीक है, 4 मसल्स हैं इस ग्रुप में। तो पहली है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड की जो हमने बात करी थी, 0 से 90 डिग्री अबडक्शन जो करा रही है, लाइक अगर मेरा ये हाथ जो उठ रहा है ना स्टार्टिंग के 15 डिग्री, दिस इज बिकॉज ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। बट एस जो उठ रहा है लाइक 15 डिग्री से 90 डिग्री तक जो जा रहा है, सिर्फ 90 से ऊपर नहीं, वो हमारा जा रहा है डेल्टॉइड के कारण, असिस्ट करते हैं डेल्टॉइड, मतलब सुप्रास्पाइनेटस 15 प्लस से डेल्टॉइड। 90 डिग्री जहां तक साइड से लैटरल से बोल रहे हैं, हाँ, लेटरल अबडक्शन, दिस मूवमेंट। मतलब लैटरल रेजर्स वहां तक ही करना है। जी, 90 से ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैप मसल यूज हो रहा है, ट्रेपेजियस मसल यूज हो रहा है, अपर फाइबर्स। ठीक है, और सुप्रा स्पॉन्टेनियस मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ सुप्रा स्पाइनेटस। कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे ये नाम, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे देन आता है याद है या इंफ्रास्पाइनेटस, लेकिन याद नहीं है मैम। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मसल्स बहुत इजी होती है, अगर आप इनको आराम से लेके चलोगे तो याद हो जाएंगी, हवा बनाओगे तो कभी याद नहीं होंगी। मैडम मैंने तो चार्ट बना के लगा रखे दीवार पे कमरे में अपने। इसका भी लगा लेना, याद हो जाएगा। देन आता ठीक है है। इंफ्रास्पाइनेटस। ये हमारा अगर स्कैपुला था बाहर वाली साइड से, तो नीचे जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा था, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस फोसा पे सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, तो इंफ्रास्पाइनेटस मसल क्या करा रही है, हमारे आर्म को लेटरल रोटेट करा रही है, लेटरल रोटेशन करा रही है। तो जो लेटरल रोटेशन है वो इंफ्रास्पाइनेटस के कारण हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर कोई क्लाइंट, कोई पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि मैम मेरे को ना पेन है ये मूवमेंट करने में, जनरली बोलते हैं आपको, तो आप लोगों को क्या चेक करना है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। आप लोगों को कहीं ना कहीं वो आइडिया क्लिक हो जाना चाहिए कि यार इसके इंफ्रास्पाइनेटस में दिक्कत है, तो मैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल का या तो रिलीज कर दूं, या जो भी आप एक बार चेक करेंगे कि टाइट है या फिर बहुत ज्यादा वीक है वो मसल, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। देन आता है सबस्कैपुलरीज। सबस्कैपुलरीज जो मसल है, इनकी इमेजेस एक बार हम लोग देख लेंगे। ये रही, जो ये ग्रीन दिख रहा है ना, जो बिल्कुल डीपली पीछे से है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, एक तो स्कैपुला का बाहर वाला पार्ट है जो हम देख पा रहे हैं, एक जो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल वहां पे होती है, ये सबस्कैपुलरीज मसल वहां पे होती है, ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है ब्लू वाला, येलो वन इज टेरेस माइनर, और जो ये ग्रीन पार्ट है जो आप नहीं देख सकते, दैट इज सबस्कैपुलरीज मसल। ठीक है, सबस्कैपुलरीज आपके आर्म को मीडियली रोटेट करा रही है। अगर मुझे इसमें पेन है तो सबस्कैपुलरीज, बाहर पेन है तो इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर जो है ये भी अगेन बाहर रोटेट करा रही है, और आपका सबस्कैपुलर जो सुप्रास्पाइनेटस था वो अबडक्शन करा रही है। अगर मुझे इसमें पेन है तो अबडक्शन में है तो सुप्रास्पाइनेटस, देन जो हमारा लेटरल रेजेस में है इंफ्रास्पाइनेटस, मीडियल में आ रहा है तो सबस्कैपुलरीज एंड आपका टेरेस माइनर। ये आपका रोटेटर कफ का मसल था। शोल्डर की यही मसल्स है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, शोल्डर में कहो तो मैं एक बार स्लाइड्स चला के रिवाइज देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। शोल्डर रीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ट्रैप मसल, देन हमने ट्रैप मसल देखा था, ट्रेपेजॉइड है पूरा, एक स्टार शेप बन रही है, देन लेटिसमस डोर्साई, देन लेवेटस कैपुले और रोम्बॉइड्स मेजर माइनर। फिर उसके बाद हम लोगों ने
इंट्रेंसिक मसल्स पढ़ी, डेल्टॉइड था उसमें, देन आपका टेरेस मेजर, फिर उसके बाद रोटेटर कफ मसल्स आ गई थी हमारी, चार थी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरीज एंड आपका टेरेस माइनर। ये चार मसल्स हम लोगों ने पढ़ी। अब आता है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल मतलब चेस्ट, चेस्ट रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक मैम है। मैम एक डाउट है। हाँ जी बोलो। डेल्ट्रॉइड जो है वो तो आ, वो अंदर के मसल है या अंदर की मतलब इंट्रेंसिक? नहीं समझी। इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक। मसल्स वो थी जो आपके शोल्डर को कनेक्ट कर रही हैं, क्या कहते हैं आपके, इससे, ह्यूमरस से, ठीक है। तो हमारा जो डेल्टॉइड है ये शोल्डर से शुरू होके ह्यूमरस पे जा रहा है, ये देखो, ये इंट्रेंसिक मसल के अंदर ही हमने कवर किया। इंट्रेंसिक मसल में पहली मसल ही डेल्टॉइड है, जी मैम। ठीक है, ये इंट्रेंसिक मसल है। ओके, अब हम बात करते हैं पेक्टोरल रीजन की, चेस्ट रीजन की मसल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहली, इंट्रेंसिक का कंप्लीट एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है मैम? इंट्रेंसिक मसल्स आर दोज मसल्स जहां से ओरिजिनेशन जो है ना इनका, ओरिजिनेट जो कर रही है वो शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला से या क्लेविकल से कर रही है, और इंसर्शन जो है वो आपका ह्यूमरस में हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। शोल्डर जॉइंट से, स्कैपुला से या फिर क्लेविकल से ओरिजिनेट करेंगी, और इंसर्शन आपका ह्यूमरस पे होगा। तो डेल्टॉइड का कैसे था, क्लेविकल से निकली और पीछे से शोल्डर जॉइंट से जो आपका स्पाइन ऑफ स्कैपुला वहां से निकल के और इंसर्ट आपका यहाँ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में कर रही थी। तो दिस बॉडी इज द, में मतलब अपने बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट मसल्स है, सो उसमें हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इंट्रेंसिक मसल्स है ना मैम? हर जॉइंट का अलग इंट्रेंसिक मसल और अलग एक्सट्रेंसिक मसल है, बट शोल्डर जॉइंट का पर्टिकुलर मसल जो है, उसमें इंट्रेंसिक मसल्स वो है जो शोल्डर जॉइंट आपके स्कैपुला और क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रही हैं और ह्यूमरस पे इंसर्ट हो रही हैं। जी मैम। जनरली हम लोग इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स सिर्फ शोल्डर जॉइंट ही देखते हैं। हर जॉइंट का इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़े या ज्यादा हो गया ये मसल्स? अ, आज के लिए यहाँ पे रोकिए, मैं फिर से रिवाइज कर लूंगा। ओके, मैम इतना ही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास करने के लिए बहुत सारा है। पेक्टोरल रीजन है, आफ्टर दैट हमारा अपर आर्म है, दैट्स इट। तो ये याद रहेंगी तो मैं पढ़ाऊँ, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट क्लास में ये भी साफ हो और पिछला भी। याद रहेंगे मैम, लेकिन बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, और फिजियोथेरेपी का कुछ बैकग्राउंड है ही नहीं, तो मैं हमने अभी तक तो रिवाइज कोई धीरे फिजियो धीरे का से कर नहीं रहा हूँ। पढ़ा। ये फिजियो जो के भी है, बहुत वास्ट मैं हो मेरे जाएगा। बैकग्राउंड जो भी है, ये सब कुछ मैं पढ़ा था, लेकिन इतना इन डेप्थ कोई बोले नहीं। ओके फाइन, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी नजर में ये बेसिक्स है, ये हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम लोग आगे बढ़े या फिर हम लोग यहीं स्टॉप करके नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करें। तो प्लीज मुझे बता दो, सो दैट ऐसा ना हो कि समझ ना आए। यहाँ पे रोक दीजिए, मैं थोड़े बहुत इसके ऊपर और रिवीजन और थोड़े बहुत प्रॉपर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन में लेके फिर से नेक्स्ट वीक, मतलब फिर से कल कंटिन्यू कर सकते हैं ना? ओके सर, सर मीटिंग में है। Yes, Preksha. सर पेक्टोरल अभी कराऊं या रुकूं, बिकॉज ज्यादा ना हो जाए कोई बात मुझे नहीं, एक डाउट। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको कवर कर लेना। हाँ, तो मेरे एक बार अभी स्टूडेंट आप इसको देख लो, मैं पिछले स्लाइड्स खोल रही हूँ, एक बार देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक मसल्स है एनाटॉमी की। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ा है कि 600 मसल्स है, टाइप्स क्या थे। देन हम लोगों ने शेप्स देखी थी, स्पिंडल, फ्लैट, ट्राइंगुलर और सर्कुलर। देन मूवमेंट्स की बात करी थी, फ्लेक्शन, स्ट्रेट रेज हो रहा है मतलब बॉडी के अलोंग जा रहा है, एक्सटेंशन बैकवर्ड, अबडक्शन साइड लेटरल रेजेस जो हो रहे हैं, अडक्शन में आपका
टूवर्ड्स द बॉडी जा रहा है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्कमडक्शन, 180 डिग्री रोटेशन जो हो रहा है, मतलब ये वाला जो पूरा मूवमेंट है दैट इज सर्कमडक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन, पंजा ऊपर उठ रहा है, फीट टूवर्ड्स योर बॉडी। प्लांटर फ्लेक्शन नीचे टूवर्ड्स द ग्रेविटी। प्रोनेशन सुपिनेशन हमने पढ़ा, दिस वन इज सुपिनेशन, ये प्रोनेशन, ठीक है। रोटेशंस, एलिवेशन, डिप्रेशन, देन हमने रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन पढ़ा। फ्रंट आ रहा है तो प्रोट्रैक्शन, पीछे जा रहा है तो रिट्रैक्शन। इनवर्जन एंड ईवर्जन, ठीक है, और ये अपोजिशन। ये बेसिक थे हमारे मूवमेंट्स। शोल्डर में हमने दो पढ़ी, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मतलब बॉडी में कहीं और से शुरू कहीं और से हो रही है, बट फाइनली जाके शोल्डर मतलब क्लेविकल, क्लेविकल और स्कैपुला पे खत्म हो रही है। बट इंट्रेंसिक उल्टा है, शुरू शोल्डर जॉइंट से हो रही है, स्कैपुला और क्लेविकल से, ठीक है, और खत्म कहाँ हो रही है, खत्म ह्यूमरस पे हो रही है, ठीक है। तो ट्रैप पढ़ी हमने, ट्रैप के 3 फाइबर्स थे, ठीक है, अपर, मिडल और लोअर। अपर ऊपर लेके जा रहा है, मिडल मीडियली ला रहा है, और लोअर फाइबर नीचे खींच रहा है उसको। देन लैटिसमस डॉर्सा पढ़ा था हमने, एक्सटेंशन करा रहा है, अबडक्शन करा रहा है और मीडियली रोटेट करा रहा है। देन आता है हमारा लिवेटस स्कैपुला, जो डीप मसल्स है बट है ये एक्सट्रिंसिक मसल्स ही। लिवेटस स्कैपुला हमने देखा था, ठीक है, ये क्या कर रहा है, स्कैपुला को ऊपर खींचता है, ये मूवमेंट करा रहा है। बहुत लोगों का शोल्डर ऊपर जो खींचा होता है बिकॉज ऑफ द लिवेटस स्कैपुला मसल। देन रोम्बॉइड्स पढ़ी हमने, मेजर और माइनर। ये स्कैपुला को अपनी तरफ खींचती है, टुवर्ड्स द स्पाइन खींचती है। देन हमने डेल्टॉइड पढ़ा कि ट्राइंगुलर शेप थी, 3 फाइबर्स थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। स्टार्टिंग के 0 to 15 डिग्री सुप्रास्पाइनेटस काम करता है, 15 to 90 डिग्री आपका डेल्टॉइड मसल काम करता है। देन टेरेस मेजर पढ़ा हमने, जो आपका अडक्शन करा रहा है और एक्सटेंशन करा रहा है, साथ में मीडियल रोटेशन करा रहा है। रोटेटर कफ की 4 मसल्स थी, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सबस्कैपुलरीज। ये हमने 4 मूवमेंट्स पढ़ी थी। जो आपका लास्ट के 2 मसल्स है, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरीज, ये मीडियली रोटेट करा रहा है, ठीक है। एल्स हमारा इंफ्रास्पाइनेटस था, वो एक्सटर्नल रोटेट करा रहा था। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहाँ पे अभी? नहीं मैम। ठीक है, तो मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ अभी, ठीक है। इसको रिवाइज जरूर कर लेना, और कल के सेशन, कल का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए प्लीज रेडी रहना। पेन कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स लिख लिया करो, तो याद हो जाएंगी ये मूवमेंट्स। बेसिक मूवमेंट्स तो एटलीस्ट हमें पता हो, कि कोई भी पूछे तो हमें पता हो, ठीक है। जी मैम। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। Good night.